السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین ثم آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رحمان یا رحیم یا اللہ مدد. انشاءاللہ تعالی 63 آیت اور دو آیتیں پڑھ لیں انشاءاللہ. جی دیکھتے ہیں جو چھوٹی زیادہ ہوں ان کو 3 بھی پڑھ سکتے ہیں. جی شروع کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی میں تو شروع بہن کروں آپ شروع کر لیں میں شروع کروں سوری جو بھی چلو کرنا چاہتا ہے چلو رفت پڑھ لیں آپ پڑھ لیں. ہاں جلدی جی سے چلو ٹھیک کر ہے. لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم او کو لمبا وَإِذْهُمْ نہ کریں، قاف کو لمبا نہ کریں، قاف کو کھینچے نا پیش ہے اوپر. قلوب لَهُمْ لو کو تو کھینچنا ہے لیکن قا کو نہیں کھینچے، قاف پیش. لَهُمْ فی أنفسہم قولا بلیغا وما ارسلنا بلیغا غین موٹا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذا ظلموا انفسہم جاؤک جاؤ کا کو ہوگا کا لمبا ہوگا. نہیں جاؤک جاؤ. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. ٹھیک ہے ایک بات. منٹ میں اوپر کرتے ہیں. پڑھ لیں، آگے بھی پڑھنا ہے تو تیسری بھی پڑھ لوں. پڑھ لیں. فلا وربک لا یؤمنون لا حتی یؤمنون لا لا یؤمنون یؤمنون میں حتی نہیں ہے می. یؤمنون. یؤمن لا یؤمنون. اب ٹھیک ہے بچے. حتی یحکموک. ٹھیک ہے بات. پڑھتے جائیں. فیما شجر بینہم ثم لا تم یجدوا ماں نہیں ہے، میم کے آگے الف ثم نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سین کو کلیئر کریں. تسلیما. تسلیما. ایسے ہی سین یسلمو سین کے بعد سیٹی والی ویسلموا آنی چاہیے. تسلیما. ماں نہیں، نون تسلیما. نہیں، گننا نہیں آنا چاہیے، ہاں نون جی گننا. تسلیما. تسلیما کیونکہ آگے الف آ رہا ہے نا. ویسے جی ماں میں تھوڑا سا ہوتا ہے گننا، آٹومیٹکلی پایا جاتا ہے، لیکن ہاں اتنا جی نہ لائیں کہ نون ہم وہ نقطے کے بغیر ٹھیک ہے. نون اردو والا بن جائے. اچھا. اولئک یہی جزاک اللہ لوگ خیرن. جزاک اللہ. اوکے آگے اس کے اوپر. اولئک یہی لوگ الذین وہ جو یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما جو فی میں قلوبہم ان کے دلوں. فآرد پس اراد کیجئے عنہم ان سے. اراد کیجیے ہوتا، اراد نہیں ہوتا. اراد اراد اراد
यानी कि पस वो आइन को ज़ेर के साथ। अच्छा, पस इराद कीजिए अनहुम उनसे, वइज़हुम और नसीहत कीजिए उन्हें, हुँ, हुँ। वकुल और कह दीजिए लाहुम उनके लिए, फी में अनफुसिहिम उनके दिलों में, कौलन बात, बलीगा असर करने वाली, वमा तबलीग इसी से है बलीगा, बलागा, बलागा है ना रूट वर्ड जी बा, लाम और गैन जी इसका ना। वा और माँ नहीं, अर्सलना हमने भेजा, मिन से रसूलन रसूल, इल्ला मगर, ली जुता ताकि वो अतायत किया जाए। हाँ जी, लियुताआ हमने किया हुआ है ना इसको जी वो प्लग एंड प्ले में, अतायत किया जाए या उसकी अतायत की जाए। हाँ जी, बी इज़्निल्लाहि हुक्म अल्लाह से, वलौ अल्लाह के और हुक्म अगर से। अन्नहुम बेशक वो इस जब ज़लमू उन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपनी जानों पर, जाऊका आते आपके पास, फअस्तगफरल्लाह रुल्ला फअस्तगफरुल्लाहु हाँ ये देखें, फअस्तगफरुल्लाहु। नहीं यहाँ पे हु क्यों कह रहे हैं? आपको पता है इसका तर्जुमा हाँ जी, बदल जाएगा। फअस्तगफरुल्लाह अस्तगफरुल्लाह हाँ वो है। बख्शिश मांगे। हाँ जी, अस्तगफरुल्लाह बस वो बख्शिश मांगते अल्लाह से, हम्म, वस्तगफरल्लाह वस्तगफरल्लाहुमुर रसूल वस्तागफरा वस्तागफरा वस्तगफरा और बख्श हमने पढ़ा हुआ ना, वस इस्तगफरा है ना, जी गफरा से इस्तगफरा वही है। वस्तगफरा और हम्म, बख्शिश मांगता लाहुम उनके लिए, और लाहुम रसूल लाहुम नहीं है, लाम को जरा भी नहीं खींचना, लाहुम 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 लाहुमुर रसूल उनके लिए रसूल, लहुवा जादू जादू ला ला लाहुमुर वजदू ला वजदू ला ला का वजादू मतलब अलबत्ता हाँ जी, ला वजादुल्लाह अलबत्ता वो पाते हैं अल्लाह से, अब बाबन बहुत है नहीं तोबा। पाते अल्लाह को, जनी अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो ऐसा नहीं नहीं, एक मिनट हाँ जी, आप ना समझ के पढ़ें इसे, क्योंकि ये बात वो हो रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा अगर वो करते तो अच्छा होता उनके लिए, वो कर नहीं रहे। ठीक अलबत्ता है वो इसलिए है और है नहीं ला सकते आप इसमें। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करते, इस्तगफार करते, अल्लाह के हुक्म की अतात करते, जो उन पर भेजा गया उसे मानते, तो उनके लिए बेहतर होता होता यानी कि अगर वो काम वो करते तो। अगर आप है कहेंगे तो वो मतलब बदल जाएगा। ठीक है। अलबत्ता वो पाते अल्लाह से, अल्लाह को हम्म, वाजद का तव्वाबन। मतलब होता है ना, वाजद पाना। हाँ जी, हाँ। तव्वाबन बहुत तौबा अब कबूल अल्लाह को करने क्यों वाला, आया है? अल्लाह को क्यों आया है? किस किस लफ्ज का क्योंकि तर्जुमा हर्फ का है? लवाजादुल्लाह हाँ जी, हाँ पर जबर है इसलिए। हा पर जबर है इसलिए को का मतलब आया है इसमें। जी, हाँ ठीक है। पर जबर है। हाँ जी, तव्वाबन बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहीमा रहम करने वाला, हम्म, फला तो तव्वाब हाँ जी, करें करें आगे इस फला आपके फला एक एक बरब। ऐसा किया करें ना तर्जमा, जब आप लफ्जी तर्जमा करते हैं उसी तर्ज आयत का बा मुहावरा भी कर जाया करें साथ में ही ना, बार बार ऊपर जाने के बजाय। तो तो अब कर लूं बस अब तीसरी इसको तक है। खत्म करें, इसको हाँ खत्म जी, कर लें अब, लेकिन ऐसा किया करें बहनें सभी। ठीक है, अच्छा, फला ताकि बार बार वापस ना लौटना पड़े। वरब्बी का हम्म, आपके रब की कसम, ला नहीं युमिनूना वो मोमन हो सकते, जे हत कसम कसम का लफ्ज कहाँ है? किसका वाव मतलब वाव कसम वाव है? कसमिया है, वाव वाव कसमिया है। जी, वाव कसमिया है। हाँ जी, फला व रब्बिका। हाँ जी, ला नहीं युमिनूना वो मोमन हो सकते, हत्ता यहाँ तक के युहक की मुंह का, युहक की मुंह का वो हाकम माने आपको, फीमा इसमें जो शजरा झगड़ा हुआ,
बैनहुम उनके शजारा, दरमियान, शजरा, शजारा, शजरा नहीं, श शजारा, रा को लंबा नहीं। शजारा, झगड़ा हुआ बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर ला नहीं, याजिदू वो पाएँ, फी में अनफुसिहिम अपने दिलों में, हराजन फिर वो ना तंगी, पाए अपने दिलों में। हाँ जी, हम्म। हराजन तंगी, मिम्मा इससे हराजन जो कैसे होगा? हराजा ह होता है हर ना, हराजा हराजन तो नहीं होता ना। ह ठीक है, हाँ जी। ज़बर की वजह से ठीक है बाजी, जबर की हराजन हरा करेंगे तो आगे अच्छा आलिफ लगा दिया आपने, मद जी, लेटर बना दिया, हराजन वो ख्याल रखना। हराजन तंगी, मिम्मा हम्म। इससे जो कदईता आप फैसला कर दें, व युसल्लिमु और तस्लीम कर लें, तस्लीमा तस्लीम करना। हम्म, ठीक है। अब उसका तर्जुमा बा मुहावरा कर दे ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए सबको। वही लोग यही लोग जो कुछ इनके दिलों में है, हम्म। लहदा आप इन बातों का कुछ ख्याल ना करें और इन्हें नसीहत करते रहें और इनसे ऐसी बात कहे जो इनके दिलों पर असर कर जाए। और हमने जो रसूल भी भेजा सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अतात की जाए। हम्म, ठीक है बाजी, अगर ठीक है। अगर बेशक वो इस वक़्त आपके पास आते जब उन्होंने अपने आप पर ज़ुल्म किया था और अल्लाह से बख्शिश माँगते और रसूल भी उनके लिए बख्शिश माँगता। तो माँगते ये यानी अगर आते वो तो हाँ जी, यानी अल्लाह से वो डरते हुए आते, अल्लाह से मगफ़रत माँगते, बख़्शिश माँगते कि जो हमने किया वो गलत किया, अल्लाह जी। माफ़ फरमाता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए फिर ज़ाहिर है जब आते थे तो अल्लाह के नबी भी दुआ किया उन करते थे, उनको दुआएँ देते थे ना। जी, तो यकीनन वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला नहायत मेहरबान पाते। तो जब चनाचे हो जाए कोई गलती गुनाह तो क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से अल्लाह माफ़ी की माँगनी तरफ चाहिए। लौटना हाँ जी, चाहिए। लौटना तो चाहिए। हाँ जी, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। करनी अल्लाह चाहिए। हाँ सुब्हाना व जी, तआला तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह जी। ताला फरमाते हैं अगर वो करते आमीन। ऐसा तो अल्लाह को भी बख्शने वाला पाते उनको, यानी जी। बख्श देता अल्लाह भी उन्हें। चनाचे आपके रब की कसम वो मोमन नहीं हो सकते यहाँ तक कि अपने बाहमी तनाज़ात में तनाज़ात यानी आपस में लड़ाई झगड़े एक-दूसरे से कहते हैं ना, हाँ तनाज़ा जी, हो गया, लड़ाई हाँ झगड़ा हो जी, गया, वो है। में आपको हाकिम ना मान लें, फिर आपके किए हुए फैसले के मुतल्लिक़ वो अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएँ यानी कि और जो इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दें, तो हाँ जी, उसको तस्लीम कर लिया जाए। जैसे भी अल्लाह के नबी ने फैसला किया तस्लीम किया जाए, ये नहीं कि अभी मैंने नहीं इसे मानना। और इसे खुशी से तस्लीम कर लें। हुँ, ओके, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आज मैं पढ़ूँ? हाँ जी, पढ़ें आगे से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू कतबना 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 अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसकुम अव इखरुजू मिन दिजारिकुम विखरुजू मिन दिजारिकुम मा फ़अलू इल्ला कलीलम मिनहुम टाइम लगाएँ इल्ला। इल्ला इल्ला कलीलुम मिनहुम अच्छा, व जहाँ पे है मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला आइन को भी ठीक पढ़ते हुए फ़अलूहु इल्ला फ़अलूहु क़लीलुम मिनहुम। मिनहुम नहीं है। मिनहुम। हुँ, हुँ। अच्छा जी, बस मैं दोबारा पढ़ती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अविखरुजू मिन आऊज़ दिजारिकुम बिल्लाहि, ही भी पूरा पढ़ना है इसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अविखरुजू मिन दिजारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम
वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ूना बिही लकाना खैरल लहुम युआज़ूना, टाइम लगाएं, यू के ऊपर टाइम लगाएं, दू के मा ऊपर यु टाइम लगाएं। मा युअज़ूना बिही लकाना खैरल लहुम व अशद्द तस्बीता। अच्छा, ये आप जल्दी क्यों करते हैं? ये देखिए, नून जो का लकाना का है और युआज़ूना का नून दोनों ही आपने खींचे हैं, और अच्छा जी। अशद्द सख्ती के साथ पढ़ना है। अशद्द औ तस्बीता अशद्द नहीं जल्दी से पढ़ना। औ अशद्द अशद्द, ठीक है? औ औ कहाँ है? व वा अशद्द अच्छा है। हाँ जी, वा अशद्द हाँ जी, सॉरी बाजी। तस्बीता, तस सा सा तस तस तस्बीता। तस्बीता। सीन की सीटी ना आए इसमें, ठीक है? अच्छा जी। व क्योंकि ईज़ल्ला हाँ, व नहीं, ईज़ इसे इसे अच्छा कर दिया, ठीक है, अच्छा कर देखिए। दूँ अच्छा जी। कर दे उम, इसको व काट। लौ और अगर अन्ना बेशक हम कतबना लिख देते अलैहिम उन पर अनिक्तुलू अनिक्तुलू के तुम कत्ल कर दो अनफुसकुम अपने आप को अविखरुजू या निकल जाओ मिन तिजारिकुम मिन से निकल जाओ। निकल जाओ हाँ जी उखरुजू, हाँ। मिन से दिजारिकुम अपने घरों मा ना फ़अलूहु वो करते जे इल्ला मगर कलीलुम थोड़े मिनहुम उनमें से वलौ और अगर अन्नहुम बिलाशुबा वो फ़अलू कर लेते मा वो जो युअज़ूना नसीहत किए जाते हैं बिही इसकी बीही, लकाना अलबत्ता बीही। होता खैरल लहुम बेहतर उनके लिए व अशद्दा और ज्यादा तस्बीता साबित रखने वाला। शद्दा किसका है? शद्दा तशदीद से है ना? हाँ जी शदीद हाँ से, जी ज्यादा ठीक हाँ है? जी तो वो तशदीद भी यही होती है। अच्छा जी रूट वर्ड शद्दा हम कहते हैं हाँ ना, जी शिद्दा और हाँ शद्दा, जी हाँ है जी ना? तो जी शद्दा जो होती है वो शद यही होती है कि सख्ती उसमें पाई सख्ती जा हाँ रही जी होती सख्ती है। पाई जाती है हाँ उसका जी लफ्ज कहने में ही हम्म, हम कहते हैं दो शदीद सर्दी है या शदीद गर्मी हाँ है, जी हम भी हाँ जी इस्तेमाल करते हैं ना। जी तो दो वो दफा बाद ही हम पढ़ा जाता है ना हाँ ज्यादा जी करने के लिए, वो तो हाँ जी अरबी का लफ्ज पढ़ने के लिए दो दफा, हाँ जी लेकिन वैसे भी इन अल्फाज में शिद्दत पाई जाती है कि बहुत ज्यादा। जी अच्छा जी वो अच्छा जी तस्बीता ते- में साबत है, सबता, तस साबा और ता, तो हमारा खैर उर्दू वाला ही है सब, हम कहते हैं साबत, है ना? साबत अच्छा वो जी थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं, बा साबत कदमी, हाँ जी है क्या ना? होगा जमा के रखना। क्या होगा जैसे ताबा दोबारा और ता। सा बा और ता। साबाता अच्छा हम्म, साबाता साबित साबत। कदम साबित कदम हम्म। हाँ जी हम कहते हैं अगर साबित कदम उर्दू रहते हैं हाँ वाले जी हाँ जी साबत को अलिफ हटा दें तो हाँ यही जी इसका रूट जी वर्ड रह जाता जी है, ठीक है? जी हाँ जी समझ आ गई हाँ जी ठीक है, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन, आगे पढ़ें। वाह नहीं पति मैं वाह मुहावरा कर दूं ना और अगर ठीक। बेशक हम उन पर लिख देते कि तुम अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ तो उनमें से थोड़े ही जे काम करते यानी और कि हम अगर हुक्म में इतनी सख्ती कर देते तो वो हाँ कर जी ना पाते, ये अल्लाह जी ताला फरमा रहे हैं असल में। जी हाँ जी और यकीनन अगर वो इस पर अमल करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो उनके लिए बहुत बेहतर और दीन में से ज्यादा साबित कदमी का बायस होता उनके लिए हम्म, बेहतर होता हाँ जी ठीक है, आगे। अब आगे पढ़ दूं हाँ जी, पढ़े। वाइज वाइजल्ला जैसे ही पढ़ेंगे, वाइजल्ला। हाँ जी वाइजल्ला आतैनाहुम मिन लदुन दुन मिन लदुन्ना अजरन अजीमा अजरन, रा मोटा करें। अजरन 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 अजीमा। अजीमा वला रा को मोटा भी हदैना रखना, अजीज, अजीमा अजीमा। हम्म। वला हदैनाहुम सिरतम मुस्तकीमा सीरा है कि सि, सिरा है? सिरा सिरा रा को लंबा भी तो करना है ना। हाँ जी सिरातम मुस्तकीमा मुस्तकीमा, मुस्तकीमा उसको पूरा करना है ना। अच्छा जी वाइजा और तब ला आतई ना हम अलबत्ता हम देते उनको मिन से लदुन्ना अपनी तरफ अजरन अजर अजीमा बहुत बड़ा हम्म। और तब हम उनको अपनी तरफ से
बहुत बड़ा अजर फरमाते। आगे वाली फाइल वला हदैनाहुम, और अलबत्ता हम उन्हें हदायत वाला देते। हदैनाहुम वला हदैनाहुम, और अलबत्ता हम उन्हें हदायत देते, सिरातम मुस्तकीमा, रास्ता सीधा। सीधा और रास्ता। उन्हें तो ये वाला और वा और ला अलबत्ता अलग अलग किया करें। हदई हदैना हदायत। हदाई हदा जो होता है हदायत ना हम हाँ वो। जी। तो इसको भी कभी इस तरह भी किया करें, अच्छा क्योंकि ये जी। काफी अल्फाज हैं जो इकट्ठे हाँ जी। किए गए हैं। जी, जी, हाँ ठीक जी। है। और अलबत्ता हम उन्हें हदायत देते। हाँ जी। हदैना हम, ना हम उन्हें। हाँ जी। ये और उन्हें दुनिया और आखिरत में सीधा रास्ते भी दिखाते। हम्म। पर जी आगे भी पढ़ दूं जो पास ये करूं? देखे नहीं, ठीक है। आगे और कोई बहन पढ़ना चाहती है? रजिया बहन, गुलफाम बहन, कोई पढ़ना चाहता है? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़े इंशाल्लाह। आयत नंबर वमन 69 है। जी वमन युतिल्लाह यूती मैं यू नहीं है, जहाँ हमजा नहीं है, जहाँ पे झटका के नहीं। वमन यु वमन यु बाजी उसको इल्ला सख्त थोड़ा करने की वमन कोशिश। यूती इल्ला वमन यूती, तो मोटा भी वमन रखना है ना। युति मैं जी यू मैं यूती इल्लाह, इल्ला मोटा नहीं करना। इल आइन को ठीक बना, इल्ला ना हो जाए, हमजा ना बन जाए। ठीक है। आइन को दरमियान में हलक के उंगली रखते हुए पड़े ऐसे इल्लाह बारीक वैसे, लेकिन आइन को दरमियान से हलक के। ठीक है। आगे वमन वमन युतिल्लाह इल्लाह इल्लाह। स्माइली मुंह आपका खुला हो आइन के लिए, लेकिन हलक के दरमियान से निकालना है। आइन इल्लाह इल्लाह। वमन युतिल्लाह वरसूला वर व रसूल, वरसूला ला नहीं, ला फउलाइका खींचना नहीं है, वर रसूला बस। वरसूला फउलाइका मअल्लज़ीना ने आप देखे हैं, एक मिनट। आपका उलाइका का भी का लंबा हो रहा है, ला रसूला का रसूल ला लंबा हो रहा है। इनको नहीं खाना लंबा, वरना वो मद लेटर बन जाएंगे ना, ये अलिफ लग जाएगा ना दोनों जबर वाले के आगे। जबर वाला वरसूला लंबा करेंगे तो अलिफ लग जाएगा ऑटोमेटिकली, मद लेटर अलिफ। अगर और जेर वाले को लंबा करेंगे तो या जज्म वाली लग जाएगी। अगर पेश वाले को लंबा खींचेंगे तो क्या लगेगा? वाव जज्म वाली। यानी तीनों मद लेटर में से एक आप लगा देते हैं, कोई भी बहन अगर खींचती है जबर जेर पेश वाले को, तो इसको याद रखें। ठीक है। आगे वरसूला उलाइका फा मअल्लज़ उलाइका फा। फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु हम्म। अलैहिम मिनन नबिय्यीना नबी मिनन नबी, बई बई नहीं है, ये मिनन मदलीन नहीं है, ये मद है। मिनन नबिय्यीना वल मिनन नबी नबी, जहां पे नबर होगी। जी मिनन नबी नबिय्यीना सॉरी बाजी, ठीक है आप नबी नरम रखना है, या नरम है। बी नबी ऐसे नहीं करना, सख्ती से उसे इस तरह नहीं पढ़ना कि मोटा लगे। ठीक है। या को मिनन रखा बरीक ही नबिय्यीना जाएगा। ठीक है। आगे अलैहिम मिनन नबिय्यीना नबिय्यीना नबीयीन नबिय्यीना नबीयीन, सख्ती से हिट कर देंगे, नबी मारेंगे उसके ऊपर। नबिय्यीना इसी को नबी नबर कहते हैं। या जज्म वाली आए, जा वाव जज्म वाली जा जज्म शद वाली आए, जा वाव शद वाली आए, तो उनके ऊपर नबर होती है। ठीक है। क्योंकि जो कमजोर लेटर होते हैं, अगर इनके ऊपर सख्ती से ना मारा जाए तो वो उनकी आवाज नहीं ठीक। भी ये नबी जी न तो वो पूरी ये नहीं ना निकली, नबी
सख्ती से नबी नबी बी बी क्यों? नबी क्योंकि पहला जज्म वाली या, क्योंकि इस शब्द में दो है ना या, पहली जी जज्म वाली है और दूसरी के नीचे दूसरी जेर है, जी ठीक है, इसीलिए। ठीक है, आगे। मिनन नबीना वस वल वल वस्सादिकीना वस सिद्ध सिद्दी वसिद वस्सिद्दी कीना, वस्सिद्दीकीना असल में वश वसिद्दीकीना तो जे अलिफ लाम तो हम पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि जे कौन सा है, शमसी लेटर है ना, सौद, हरूफ वस शमसी में से है सौद। वस्सिद्दीकीना والشهداء والشهداء والصالحين وخ- वस्सालिहीन, स्टॉप कर ले, आगे पढ़ ले والصالحين पूरा। والصالحين ले नहीं है, ले नहीं है, मजहूल नहीं पढ़ना, والصالح- वस्सालिहीन। والصالحين हम्म, والصالحين وحسن أولئك वहसुना, रफीqa हासुना नहीं है, वहसुना, وحسن أولئك रफीqa रफी, रा को मोटा पढ़ेंगे, फी को बारीक और का को फिर मोटा आगे। रफीqa हम्म, ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما वकफा वकफा, وكفى بالله عليما इनको ना आप ज्यादा कोशिश करिए इनको दोबारा पढ़ने की, किसी कारी की टेप सुनने की, ठीक है। जी माशाल्लाह, जब आप रेगुलर आते होते हैं तो गलतियां कम होती हैं, अब आप काफी देर के बाद आए हैं तो गलतियां बहुत ज्यादा हैं। कुछ मैंने निकाली हैं, कुछ नहीं निकाली हैं अभी। तो इनको कोशिश किया करें कि आप अलार्म लगा लें क्लास का टाइम पे, अगर हो गई है तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुई तो फिर भी अलार्म लगा होगा तो बज जाएगा अलार्म, आप क्लास के लिए लिख लें ऊपर, इंशाल्लाह। जी ठीक है, जी आगे। ये आगे वाली आपने कर ली है, ठीक है, जी इसको लफ्ज़ी तर्जुमा कर लूँ कर वामन ले। हाँ जी। और जो योती अतात करे अल्लाह अल्लाह व रसूल और रसूल अल्लाह की वैसे तो है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह ही उन्होंने लिखा है, अल्लाह की जहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह की क्यों अल्लाह की कैसे, हाँ के ऊपर जबर है, जो हम प्लग एंड प्ले में पढ़ चुके हैं कि क्यों की आया है, ठीक है, व रसूल आगे। और रसूल फाउलाइका बस यही अब लोग रसूला के ऊपर भी जबर है, तो रसूल की है ना, आगे जी ऑटोमेटिकली। व हम रसूलुल्लाह सोचते कई दफा होते हैं की या का किसका तर्जुमा हुआ, हमें तो नजर जी नहीं आता, ये क्योंकि वो कब करेंगे, जब उन्होंने उर्दू बा मुहावरा तर्जुमा करना है इस कुरान वालों ने, तो फिर वो की का तर्जुमा करेंगे, लेकिन हम उन्हीं को अल्फाज को देखते हुए उधर ही तर्जुमा कर दिया करें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है रसूल व रसूला और रसूल की हम्म, फाउलाइका बस यही लोग मा साथ अल्लजीना वो लोग जो अनआमा इनाम किया अनआमा है कि अनआमा है, अनआमा अन अनआमा है। अनआमा इनाम किया अल्लाहु अल्लाह अलैहिम उन पर मिन अल्लाहु, अल्लाह ने, काम किसने किया है, अल्लाह के अल- नाम के ऊपर क्या है पेश, हा पेश के ऊपर, अल्लाह ने तो काम किसने अल्लाहु किया है, हाँ अल्लाह ने ज़मीर की है तो अल्लाह ने काम किया है, इनाम किया अल्लाह ने का तर्जुमा आ गया जहाँ पे, जी ये जो नीचे उन्होंने बाद में मुहावरा लगाना है है वो ये इधर नहीं आ लिखा गया। हुआ है इन्होंने नहीं लिखा हुआ ना, इंशाल्लाह ये देखे, ये जो ने जो नीचे उन्होंने बा पिछला अंदर है। लिखा हुआ है मुहावरा जी में लिखा है ना, अल्लाहु अल्लाह ने कई कुरान में लिखा होता है लेकिन इन्होंने नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, अला अलैहिम पर हिम उन पर, ठीक है। अला अलैहिम उन पर मिन हम्म, से मिनन अन्नबियीन नबियों हम्म,
والصدیقین والصدیقین اور صدیقین والصدیقین والص- والصدیقین والصدیقین اور صدیقوں والشہداء اور شہیداں والصالحین شہید شہداء کہہ سکتے ہیں شہید ہو جائے شہداء اور شہداء اور صالحین نیک لوگ وحسن اللہ ہمیں بن میں سے وحسن اور اچھے اولئک یہ لوگ رفیقا ساتھی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت صلی اللہ کرتے علیہ ہیں وسلم وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر ہوں گے اللہ نے ہوں گے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور نیک صدیقین یعنی جیسے سچے کہہ سکتے ہیں آپ سچے صدیقین شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اور شہداء ان یعنی شہید شہید یعنی شہید ہوں، اور نیک لوگوں کے ساتھ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے اللہ ہمیں بھی ان میں سے شامل کر دے آمین جنہوں ایسے ساتھی جنہیں ملے جن کا شمار انبیاء اور صدیقین اور شہداء میں ہو جائے اور جن کو ایسی فرینڈ شپ ملے ایسی محبت ملے جو کہ اللہ کی محبت جن کے دلوں میں ہو ایسے لوگوں کی ہمیں بھی محبت مل جائے اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے رفیق بننا کتنا ام، درجے کا کام ہے بہت خوب ہے وہ اگر ان کے رفیق بن گئے رفیق کا کیا ہوتا ہے ساتھی رافع اور قاف رافقہ وہ ایک محبت ہوتی ہے نا ایک تعلق ہوتا ہے انسان سے دوسرے انسان کا تو وہ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ساتھی جنی کے ہوں تو اوپر جن کا ذکر ہوا ہے ان کے مخالف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری طرف بھی بتا دیا کہ اگر وہ مان لیتے ہیں ان پر جو بھی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرتے ہیں یعنی کہ اوپر وہ نہیں کرتے تھے تو اب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو ان کا بھی بتا رہے ہیں صحابہ کرام کرتے تھے نا کہ منافقین ان میں سے نہیں کرتے تھے جو باہر یعنی کہ اندر سے باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور تھے وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بس یہ آگے والی بھی محاورہ اور کر دوں نا تو میں ذالک ہاں جی پڑھوں ہاں یہ جی کریں ختم الفضل کریں نا اس کو فضل من سے اللہ وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ ہوں۔ علیما جاننے والا ان کو آئین کو ضرور پڑھے ورنہ وہ دردناک ہو جائے گا نعوذ باللہ اعلی علیما یعنی لفظ بدل جائے گا علیمہ پڑھ دیں گے تو دردناک علیمہ عین علیمہ علیما علیما جاننے والا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا علم کافی ہے رکھنے والا آپ کا ہاتھ کھڑا ہے بہن آپ پڑھے سسٹر میں پڑھوں جی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ منہ گلائی میں نہ لائیں موٹا کرنے کے لیے طاق کیا کر موٹا کرنے کے لیے نا منہ گلائی میں نہ لائیں کی جڑ اوپر اٹھی تو ہوئی ہو اسے موٹا کرنے کے لیے شیطان منہ کھلا ہے ٹھیک ہے شیطان ہاں الرجیم جی اب پھر مختلف پتہ چلا ہے آواز مختلف ہوئی ہے آپ کی نا کیونکہ جب منہ گول کر کے تو کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ منہ گول ہوا ہے حالانکہ میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا پڑھے یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا
थोड़ा सा इख्फा करें, पंखे की तरह पढ़े, नून को जनी थोड़ा सा छुपाए। फंफुरू फीरू, फीरू, रा मोटा भी रहेगा। फंफिरू फंफुरू फुरू आगे पढ़े। सुबातिन अविनफुरू अविनफुरू अच्छा, जमीआ सुबातिन अविन फीरू, फी को बिल्कुल क्लियर पढ़ें, रू को मोटा पढ़ना, रा मोटी होगी, रू रू, ठीक है। रू मुंह रू गोल करते हुए, होंठों को गोल करते हुए। सुबात सुबातिन अविनफुरू फुरू जमीआ वइन्न मिनकुम लमन लमल लमल्लयुबत्तिअन्न यू को खींचना नहीं है, यू बत्ती, ता मोटा भी रहेगा, लेकिन पीछे से लम जुबान की जड़ को ऊपर उठा के मोटा रहेगा, ठीक है। लमल लमल्लयुबत्ति बत्तिअन्न फ़इन असाबतकुम असाबत, असाबतकुम फ़इन नहीं, इस असाबतकुम हम्म, असाबतकुम मुसीबतुन जहाँ पे इकट्ठा रखेंगे, जे जहाँ पे इदगाम है, इदगाम मीम शफवी में हो रहा, ठीक है। हाँ असाबतकुम असाबतकुम मुसीबतुन अच्छा, ऐसे अस, पढ़ेंगे, असा, असा को तो मोटा, साद को मोटा रखना है, असाबत कुम मुसीबतुम काला, कुम, कुम, मीम को दोनों को कुम यानी दोनों मिलाना को है ना मिलाना है। इसको। हाँ हाँ दोनों जी, को मिलाना तो है। फिर आगे वाली मीम को गोल भी आपने होंठ करने, तो फिर होगी, ठीक है। मीम में गोल होंठ करने होंगे। क्योंकि पेश के लिए गोल होंठ होते हैं, वाव हाँ के लिए गोल होंठ होते हैं, होंठों की गोलाई। हाँ, और मीम जब पेश पढ़ी जाती है किसी हर्फ के ऊपर भी, तो वो हर्फ जो है इसी तरह पढ़ा जाता है कि आपके होंठ इतने गोल हों जैसे दरमियान में एक सुराख रह जाए और आवाज उससे आए। असाबत असाबत कुम क असाबत कुम मुसीबतुन। सही है सिस्टर। हाँ जी, पढ़े। असा असाबत कुम मुसीबतुन कॉल जहाँ कॉल पे भी इख्फा है, फाइन, असाबत, जहाँ पे ता जो है ना जज्म वाली बात, ये थोड़ी सी हाँ इस तरह है कि इसके ऊपर हम सिफात में इसको, इसकी सिफत एक ऐसी है जो कि दूसरे हरूफ से हट के है, कि काफ डंडे वाला, और ये ता जो है जब भी इनके ऊपर जज्म आएगी ना, तो ये इस तरह की आवाज आएगी आखिर में, क्योंकि ये इनकी सिफ़त है, शिद्दा के बाद इनके ऊपर फिर क्या होता है, इज़हार होता है। यानी कि ये ऐसे इनकी सिफ़ात में से है, अगर आपने पढ़ रखी हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आगे पढ़े करें। क़ाला, कॉल कॉल कद अनअमल्लाहु मल्लाहु, अल्लाह के नाम का लाम मोटा पड़ा जाएगा। अनअमल्लाहु अनअमल्लाहु अभी भी आपका मोटा नहीं, मल्लाहु आपका, मल्ला, ला, अल्लाह का नाम का लाम मोटा मोटा नहीं होगा, पड़ा जाता। लाहू। अनअमल्लाहु मीम नहीं मोटी मल्लाहु कर देनी साथ में, मल्ला मीम नहीं है मोटी, सिर्फ अच्छा सिर्फ अल्लाह के नाम अल्लाह। का लाम मोटा अनअम है। अनअमल्लाहु आप पढ़े पढ़े, आगे पढ़े। तो पता नहीं कहाँ चला गया। अलैहिम जहाँ पे है, जहाँ पे जे कर्सर अलैहिम जा रहा है। अलैहिम अलैहिम मिन नबिय्यीन मिनन नबिय्यीन, मिनन नबिय्यीन अलैहिम मिनन नबिय्यीन
नहीं बाती नहीं आप बाजी ये ये तो आप आगे पढ़ा हाँ गया जी पहले, हाँ वो बदल गया था ना हाँ जी, इसलिए बदल उनको गया पता नहीं हाँ चला। जी हाँ जी ठीक। हाँ सिस्टर चेंज हो गया है। हाँ जी, नहीं अब आ गया ना अब। हाँ जी अच्छा, किसी बहन ने मुझे हाँ, अनअमल्लाहु जे है जे हाँ जी, आना जी आ गया ना अब। हाँ जी अन अन अमल अन अलैय अमल्लाहु अलैय, अन ऐसा ही है ना? अमल्लाहु। जी हाँ जी ये हाँ जी, जी है बाजी। हाँ ठीक अब है आ सिस्टर थोड़ा गया है, ऊपर क्योंकि ऊपर वो कर भी दे। ऐसा ही था ना। जी। हाँ कॉल कद अन अमल्लाहु अलैय, हाँ जी अलैय, अलैया 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 इस्लाम अकुम अकुम मअहुम शहीदा। माअहुम, आइन को माअहुम नहीं कहना, हमजा की तरफ नहीं जाना, आइन है, ठीक है। मअहुम अकुम मअहुम शहीदा वल इन असाबकुम वाला इन, वल इन असाबकुम फजलुम मिनल्लाहि फजलुम मिनल्लाहि दाद पढ़े इसको, दाद स्वाद को, ठीक दाद। फद और फिर ये फदलुम ना बहुत बहुत है, डेलिकेट हुआ हो, फदल जल्दी से ऊपर चल फदलुम जाता है। मिनल्लाहि हम्म, तो सॉरी, आगे आ नहीं रहा। ठीक है आ गया अब। हाँ फदलुम मिनल्लाहि लयकूलन्न, लयकूलन्न कअल्लम तकुन तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दत मवद्दत या मा लेतनी मा वद्द, वाव के लिए अब होंठ गोल होंगे ना, वाह वाह, वद्दा मा या वद्दत लैतनी, मा मा वद्दत या लेतनी। ले नहीं होगा, लई होगा, लई मदलीन है ना, तो मदलीन को लई, लई पढ़ते हैं, लै नहीं पढ़ते, बड़ी जा नहीं लगाते आगे अल्फाज के। यानी फिर सिस्टर किस तरह पढ़ेंगे? लई लई है या हाँ, लईतनी, या लैतनी नहीं या पढ़ेंगे, ठीक है। लेतनी लई लई, लै लई नहीं ना, या लै नहीं होगा ना, लेतन लई लई, लई लैतनी होगा। या लैतनी या लैतनी कुन्तु मअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा। अजीम, अजीजी मोटा भी है, और बहुत जे नरम भी है, जॉद, जॉद जो है, अज़ीमा ठीक है, मोटी भी है फौज़न और नरम भी अज़ीम है, अज़ीमा। ठीक है आगे। सिस्टर मीनिंग करूँ या आगे पढ़ूं? इसका तर्जमा पढ़े ना, इनका तर्जमा कर दिया हम, हाँ सिस्टर तो ऊपर नहीं हो रहा है ना। कर रही हूँ, हाँ आ निकाल गया। लिया ना। या या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो खुदू पकड़ो हिजरकुम अपनी बचाव का सामान फंफुरू बस निकलो सुबातन गुरो गुरो अविन फुरू या निकलो जमिया इकट्ठे व इन और बेशक मिनकुम तुम में से ल ल लमलयुबत अन्न अलबत्ता जो जरूर देर करता है पर इन पस अगर असाबत असाबतकुम लमन, ला, तुम्हें पहुंचे ला अलबत्ता मन जो, ठीक है, ला अलबत्ता मन जो, ये दोनों अलग अलग है। ला अलबत्ता और मंजो हम्म, ला अलबत्ता मंजो जी हाँ ला अलबत्ता मंजो लयुबत्ति अन्न जरूर देर करता है पर इन पस अगर असाबत
तुम्हें पहुँचे मुसीबतुन कोई मुसीबत, कौल कहता है, कद बेशक अनअमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ने, अलैय मुझ पर, इस जब लम ना अकुन में था, मअहुम उनके साथ, शहीदा मौजूद हाजिर, वल इन और अलबत्ता अगर, असाबकुम तुम्हें पहुँचे, फजलुम फजल, मिन से, अल्लाही अल्लाह, लयकुलन्न तो जरूर कहता है, कअल्लम गोया के ना तकुन थी, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहू और उसके दरमियान, मवद्दतुन कोई दोस्ती, या लेतनी काश के मैं, ले, लैतनी काश, या लैतनी काश के मैं, सिस्टर आगे नहीं आ रहा, एक मिनट, वो सॉरी, बहुत ऊपर चला गया, ठीक है। या फल लईतनी यहाँ पे हाँ, या लैतनी काश के मैं कुंतु होता महम उनके साथ, अफूजा तो कामयाबी पाता, फौजन अजीमा कामयाबी बड़ी। अब इसका पूरा तर्जुमा कर, ठीक है, कर दे। हाँ, ए ईमान वालो, अपने बचाव का सामान तैयार रखो, फिर फिर हस्बे हालात ग्रोह ग्रोह होकर निकलो, या सब इकट्ठे होकर, और बेशक तुम में से कोई ऐसा भी है जो जरूर देर करता है, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची तो कहता है, अल्लाह ने मुझ पर बड़ा इनाम किया। सिस्टर फिर आगे करें, इनाम किया है, आगे के बजाय पीछे चले जाता है बस ये। मुझ इनाम पर क्या किया इनाम अल्लाह क्या ताला है ने मुझ उन पर? पर, जब ना मैं था उनके साथ मौजूद, या हाजिर, और नहीं था, और अगर नहीं अल्लाह का फजल मिले तो उस तरह कहता है कि गोया के तुम्हारे, और अगर तुम्हें गोया अल्लाह तुम्हारे, का फजल मिले, अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो उस तरह कहता है कि गोया तुम्हारे और उसके दरमियान दोस्ती थी ही नहीं, काश हो, काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी पाता। सुभान अल्लाह ना, सिस्टर ये जो दुनिया किसका परस्त किस्सा होते है? हैं वो सिस्टर ये किसका किस्सा है? आज जब भी हम कहते हैं इनको, ये मुनाफिकीन थे ना, जो कि मदीने में थे। तो मदीने के मुनाफिकीन का किस्सा अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं, क्योंकि पीछे से मुनाफिकीन की ही बात चली आ रही है। जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, काफी देर से मुनाफिकीन की बात चली आ रही, जो उनके फैसले भी लाते और यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले कराने के बजाय यहूदी उल्मा से फैसले जाके करवाते थे। क्यों? क्योंकि जब खुद बंदा झूठा हो ना, तो जो उसकी पसंद का बंदा हो उधर फिर जाता है जो उसकी बात करेगा, चाहे वो रिश्वत दे लेके करेगा। जैसे ना, तो जो बंदा रिश्वत नहीं लेगा, आज के जमाने में हम लेने अपने आप को जहाँ पे भी, तो क्या होता है, जो रिश्वत दे देता है उसकी बात होती है फिर, उसका लेकिन काम जो हो जाता नहीं है। हाँ दिया, जी, जिसने नहीं दी होती है ना, उसका उसका काम हो काम जाता है, जो हाँ लेता है जी, उसका काम हो जाता है। नहीं होता। हाँ जी, चाहे वो झूठा हो, चाहे वो सच्चा हो, जी, बात उसी की सुनी जाएगी जिसने दिया है, माल लगाया जिसने है। दिया है। हाँ जी, तो वो भी इन ऐसे ही करते थे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इसको हम शुरू से देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बात हो रही है पीछे से, बल्कि तो जी, चली आ रही है बात, लेकिन ये है कि पीछे से फिर जिस को थोड़ा सा डाउट है वो पीछे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए इंशाल्लाह ताला।
तो आयत नंबर 63 से हमने पीछे है अभी, हाँ जी 73 तक हो गई ना। जहाँ से है 63 से है, ठीक है, इधर से करना है अभी जी इंशाल्लाह ताला। तो जी ये पीछे से ही लिंक बनता आ रहा जी है कि पीछे जो बात हो रही थी उसी को आगे बढ़ाया। क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग उलाइकल्लज़ीन यअलमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम फ़अरिद अन्हुम वइज़हुम वक़ुल लहुम फी अनफुसिहिम क़ौलन बलीग़ा। यही लोग हैं, यानी यही वो लोग हैं जिन्हें जानता है अल्लाह, जो उनके दिलों में है। यानी अल्लाह जानता है इनके बारे में कि इनके दिलों में क्या छुपा हुआ है। कि अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं कि यही लोग कौन, जो ऊपर उनकी बात हो रही है, ठीक है, जो हो के गई है बात जी उनकी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनका अल्लाह खूब जानता है ऐसे लोगों को। ये तो वही लोग हैं, यही लोग हैं जिनके, क्योंकि उलाई का यही के मायनों में आता है। वैसे तो उलाई का वो के मायने में आता होता है, लेकिन कुरान में एक जगह के अलावा बाकी सब जगह क्या है, यही के मायने में, ये या यही के मायने में आया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह इनके दिलों की बात जानता है, जो इनके दिलों में है अल्लाह अल्लाह को पता है। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि दुख करने की बजाय, यानी कि रंजो गम करने की बजाय कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि उनसे बस इराज ही कीजिए। इराज करना क्या होता है? कौन बहन इराज करने का मुझे बताएगी, फिर समझ आएगी आप इस लोगों को। इराज इराज करना किसको मतलब कहते हैं? इराज करना दूरी करना, दूर रहना, बात को हम ऐस- कहते हैं ना, बात एक को बात सुन लेना, लेकिन हाँ उसके जी ऊपर बहुत ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं बस देना, सुन हाँ लेना, जी उसको ज्यादा है ना। नोटिस नहीं करना, जिस तो ऐसे कहते जहाँ हैं ना, हाँ जी इराज करना के बात का पता भी हो लेकिन खामोशी इख्तियार हाँ की जी जाए, या फिर उसको, एक तो है ना बिल्कुल ही बचा जाए और उसके करीब भी ना जाया जाए, उससे जी ताल्लुक ही छोड़ दिया जाए, ये नहीं अल्लाह ताला फरमा रहे जी यहाँ पे कि उनसे नहीं, हाँ जी ताल्लुक कता हाँ तलकी जी की जाए, नहीं। नहीं, हाँ जी बस उनकी बातों पे बातों को, ध्यान हाँ ना जी किया जाए। हाँ जी बस सुन लें और उनको उनकी बातें, उनको हम हाँ, सुन इग्नोर ले कर दें, हाँ जी खामोशी से हाँ जी हाँ जी और बस इग्नोर कर दें हम। इग्नोर कर दें, हाँ जी नोटिस, ज्यादा नोटिस हुँ, ना करें उनका, जी हाँ है। जी नोटिस ना करें। जी, कई हम्म, दफ़ा होता है ना, किसी की बात ऐसी होती हाँ है, जी दिल में खुभ दिल, जाती हाँ है जी और इंसान दिल पर ना दिन-रात ले, हाँ जी सोचता दिल है। पर ना ले, इसका मतलब हाँ जी दिल पर हुँ, ना ले, हाँ जी तो ये बात हो रही है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज़ बरतें इनसे, और उनकी बातों को इग्नोर करके क्या करें, उन्हें नसीहत करते रहें। यानी कि नेक कामों की, अच्छी बातों की उन्हें नसीहत करते रहें, उन्हें बताते रहें, अच्छे काम बताते रहें उन्हें। तो हमें फिर क्या मिलेगा जहाँ से? क्या हमें करना है हर बात को, हम अपने सर के ऊपर हर बात को बोझ बना के डाल लेते हैं, जी है ना? तो फिर क्या करते हैं? फिर हम उसी को ले लेकर फिर क्या करते हैं, बार 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 बार, हाँ इंसान के जी हाँ जी बारे में नफरत के पहाड़ बुन लेते हैं जी कि इसने मुझे फलां वक्त ये बात कही थी, उसी में ही रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं, अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, राज बातें, और उनसे यानी ताल्लुक नहीं परहेज तोड़ना। करें, हाँ जी हाँ, उनसे ताल्लुक नहीं तोड़ना, उन्हें नसीहत भी करते रहना, अच्छे की बात। अच्छा, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई हमारे बच्चे, हम अपने ऊपर लेते हैं इस बात को कि हम कितना इसके ऊपर अमल करें। कई बच्चे, हमारे बच्चों में से ऐसे बच्चे होते हैं, बस ऐसे बेवकूफों जैसी बातें हरकतें करते रहते हैं, और हम उनकी हर हरकत पे हमें फिर पता होता है। शुरू शुरू में तो हम लेते हैं नोटिस, लेकिन फिर बाद में जब वो ऐसा ज्यादा करते हैं तो हम उनकी नोटिस लेना बंद कर देते हैं। सिर्फ हम इतना कह देते हैं कि बच्चा बाज आ जाओ, चोट लग जाएगी, जी बच्चा बाज आ जाओ, ऐसी बात ना करो, है ना। लेकिन जी फिर उसको नसीहत भी करते हैं कि ना करो,
जी ये नहीं है कि उसको छोड़ नहीं देते कि वो खूह में गिर रहा है तो उसे गिरने दो, क्योंकि हमने कई दफा उसे कहा है कि नहीं करना। अब वो फिर भी नहीं मान रहा बच्चा, तो अब गिरने दो, चोट लगने दो। छोड़ तो नहीं देते ना उसे, नहीं, हाँ जी, आग के हवाले तो नहीं कर देंगे ना। आप आग, अगर जी, बच्चे को बच्चा आग पकड़ना चाह रहा है और आप उसे मना कर रहे हो लेकिन वो नहीं मान रहा, तो क्या आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, पकड़ ला जाके? नहीं नहीं बच्चे, नहीं, नहीं कहेंगे ना। हाँ जी, यही बात है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? बशीर व फिर नदीरा। हाँ जी, जी खुशखबरी जाने, यानी खुशखबरी देने खुशखबरी भी वाले देते रहो देने जो वाले मान और जाए, डराने और और डराने जो वाले। डराते भी रहो, उन्हें नसीहत करते रहो जो मान जी नहीं रहे, उन्हें नहीं छोड़ देना। और हम छोड़ देते, हम कहते हैं कई दफा तो कहा है, वो नहीं मानते तो अब उनको उनसे तलक ही छोड़ दो बस, ऐसे नहीं करना। तो आगे क्या अल्लाह ताला के फरमा रहे हैं, क्योंकि जे हम बहुत इसकी डीप डाउन तफसीर में ना भी जाए ना, तो जी, हमें अपने रोजमर्रा के जी, लिए बहुत कुछ है जी, इसमें, जी, इन आयत में, कि हम राज कैसे बरतें दूसरों से। जो हर वक्त बेवकूफियां करते रहें, क्या उनकी बातों में हम आके उनको सुन के हम उनको छोड़ दें, ताकि उनको दोबारा कोई नसीहत ही ना करने वाला रहे, नहीं, या फिर उनकी उनकी भलाई चाहते हुए उनको ठीक बात बताते रहे लेकिन उनकी बुराइयों से एराज करते रहे। जी, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, यानी बता भी दीजिए, क्या क्या बता दीजिए? वकुल लाहुम, वकुल लाहुम, और कह दीजिए उनके लिए, यानी फी अनफुसिहिम, उनके दिलों में ऐसी बात, कौलम बलीगा, जो असर कर जाए, जो उनके दिलों में, कहते हैं ना कि तीर लगा सीधा निशाने पे, वो लग जाए। जी, इस तरह उन्हें नसीहत करें, इस तरह उन्हें दीन इस्लाम बताएं कि उनके दिलों पर वो असर कर जाए, दिलों पर वो एक दाग छोड़ जाए, तो वो दाग फिर तड़पाए उन्हें अल्लाह की याद में। ऐसी बात कही उनको। तो जी फिर अल्लाह के नबी छोड़ के गए ना दिलों पर असर ऐसा। तो जी, हमें भी जब दूसरों को बात बतानी है तो उनकी खैरख्वाही करते हुए बतानी है, उनके लिए तड़पते हुए बतानी है, और ऐसी बात बतानी है, ये भी नहीं कहना हर वक्त कि मैंने तुम्हें बताया था ना करो, और फिर अब तो कर लिया तो अब तो नतीजा। ऐसी बात, ऐसी टून में बात करेंगे तो क्या होगा? नहीं बहुत ज्यादा मानेंगे हो ना, आगे नहीं, वाला हाँ नहीं जी, नहीं मानेगा, मानेंगे हाँ जी, जी नहीं मानेगा जी, ना। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए तबलीग की भी, हाँ, क्योंकि जहाँ पे तबलीग ही है, ये आयत तबलीग की है, ठीक है? जी, क्या है? तबलीग की तभी तबलीग जी आयत की है, आयत है। ठीक है? दूसरों को बताने की बात है, और दूसरों की बुराइयों से इराद बरतना, दरगुजर करना, और उन्हें, क्योंकि अगर हम माफ नहीं करेंगे ना उन्हें, हुँ, तो वो नसीहत नहीं कर सकेंगे। जी, अगर दरगुजर कर लिया और अंदर से वही है, अभी दिल हमारा उसी नफरत में भरा पड़ा है, तो क्या फिर नसीहत कर सकेंगे? नहीं नहीं बची, नहीं नहीं, कर सकेंगे, क्योंकि हाँ जी, खैरख्वाही तो आएगी नहीं फिर, जी, हाँ जी, तो नसीहत कैसे होगी? तो हमें इंसानों की हमदर्दी करनी है, उनकी खैरख्वाही करनी है, फिर नसीहत काम आएगी, फिर उस नसीहत में असर होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके दिल पर असर करने वाली बातें कहते रहें उन्हें, कहें उन्हें ऐसी बातें, छोड़े नहीं, उनसे ताल्लुक नहीं तोड़ना। जहाँ पे एक कौन है जो इतनी तकलीफ भी कोई दे रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ा ना क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन जी, फिर भी अल्लाह ने क्या उनको लिए हुक्म दिया? रिश्तेदार ऐसे होते हैं, जी है जी, हर होते वक्त ही हैं। ऐसी हाँ बातें जी करते हैं जो कि तकलीफ देने वाली हाँ जी, होती जी हैं, हाँ जी, हाँ जी है है ना? हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे कह दिया कि उन्हें छोड़ दो, अल्लाह ताला चाहते तो कह देते कि वो तो रिश्तेदार भी नहीं थे कि मैं मुनाफिकीन इतनी तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ दे इन्हें, रहने दो इन्हें, रहने दो, दूसरों को जो सुनते हैं उनको उनको तबलीग करो। नहीं कहा ना, नहीं कहा, हाँ जी, नहीं कहा। तो फिर हमने क्या करना है? हमने भी उनकी जी हाँ हमदर्दी जी, करते हुए दिल से उनके लिए तड़पना है, कि और फिर जब दिल से तड़पेंगे ना, तो फिर हमें, अपने बच्चे हैं, पोते पोती
नवासे नवासियां हैं, कोई बहन भाई है, ऐसा कोई भतीजी भतीजा भांजी भांजा जो भी जनी अपने रिश्तों में, या फिर जी, हमसाई है, कोई हमसाई है उसको आप कहते हैं वो नहीं मानती, फिर आप कहते हैं नहीं मानती, 2-4 बारी कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम मैंने नहीं इससे बात करनी, मैंने इसे छोड़ दिया, नहीं मानती तो ना माने। इसका ही फायदा है, मेरा थोड़ा है। यानी ऐसी बातें फिर हम करके क्या करते हैं, उससे ताल्लुक तोड़ लेते हैं। तो ऐसा अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं करना, नहीं करना ऐसा। फिर भी उसे नसीहत करती रहना है अच्छे अल्फाज में, ताकि उसके दिल पर असर हो जाए और वो मान जाए बात। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए ऐसी तबलीग की जो लोगों के दिलों को बदल दे, जो अल्लाह के करीब कर दे, उनको अल्लाह से जोड़ दे उन्हें। आमीन सुम्मा आमीन। हम आम से नहीं, अल्लाह से, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ा वही कामयाब है, जी, और जो लोगों से जुड़ा कि फलां जी, बाजी बड़ी नसीहत अच्छी करती है, फलां बाजी बड़ी अच्छी तबलीग करती है, लेकिन वो किससे जुड़ रही हैं? बाजी से कि तबलीग से? बाजी से, बाची से। हुँ, बाजी से बाजी जुड़ से। रही हैं ना। बाची से। अब बाजी हाँ, परे हो जाएँगी तो वो तबलीग सारी गई खूह में। जी, अगर वो तबलीग को सुनेंगे, अगर आप इस आयत को सुन लेंगे ना, इस आयत में हुँ, गौर व फ़िक्र करेंगे, तो फिर अल्लाह के करीब होंगे कि हुँ, कितनी गहराई है इस आयत में। जी, बहुत सारी गहराई है ऐसा आयत में कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जो दे रहे हैं वो तो बहुत आला चीज है, क्योंकि मुनाफिकीन जो थे वो तो कुफ्र और निफाक में बहुत आगे बढ़े हुए थे, और अल्लाह ताला खूब जानता है, खूब खबर रखता है उनकी तवीलें, उनकी गलत कस्में, झूठी कस्में वो जो खाते थे, उज़र बहाने करते थे, और फिर जो है कि वो मुसलमानों को दिलों से चाहते थे कि इनको मुसलमानों को नुकसान हो, और मुसलमान जो है क्या हो, मुसलमानों का जनी हर वक्त बुरा ही चाहते थे। कोई रिश्तेदार भी कई दफा ऐसे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, और मैंने हमेशा ही उनकी खैर खाही चाहिए, हमेशा ही उन्हें नफ़ा दिया है, यानी कि हमेशा ही उनकी अच्छाई ही चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पता है क्या फरमाया था? कि अगर ये सच्चा है ना अपनी बात में कि वाक़या ही वो तकलीफ़ देते हैं और इसने खैर-ख़ाही हमेशा की है यानी इस बात में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये अपनी बात में सच्चा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर आपके लिए रिश्ता मुकर्रर कर देंगे, जो आपकी तरफ से आपके रिश्तेदारों से आपकी हिफाज़त करेगा। यानी आपका मुहाफ़िज़ बन जाएगा। आपको तकलीफ़ नहीं होगी। उनकी जो देंगे तकलीफ़, उससे बचाएगा आपको। लेकिन हमें भी वो दिल भी ऐसा चाहिए, जो बिल्कुल साफ़ हो जाए, कोई हमें तकलीफ़ दे और हमारा दिल साफ़ हो जाए उसके बाद। पहले तो हमारे दिल ही नहीं साफ़ होते ना। हम जी। उसी को बैठ जाते हैं कि इसने मुझे फलाँ वक़्त जी, ज़िंदगी में फलाँ कहा था, और फिर हुँ। हम तो अल्लाह ताला फरमाते हैं खैर ख्वाह बन के उनको नसीहत फरमाते रहे, ताकि दिलों पर असर बात कर ले। ऐसी बात कहनी है, ये नहीं है कि बस एक तुखनी देने वाली, वो कहते हैं ना तीली लगा दी फिर, और भी अल्लाह हमें तौफीक दे, कई दफा ऐसा भी हम रवैया रखते होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान उनके खैर खा थे, और वो जो थे मुसलमानों से दगाबाजी करते थे, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि वो दगाबाजी करते हैं आप भी करना शुरू कर दें, ना। बदला लेने के लिए जहाँ पे नहीं कहा। ये भी याद रखें कि कभी इस्लाम की मुनाफिकीन के साथ कोई जंग नहीं हुई, जंगें कफ़ार के साथ हुई हैं, मुनाफ़िकीन के साथ नहीं हुई। हालाँकि मुनाफ़िकीन जो थे, कई मुनाफ़िकीन के नाम भी बता दिए गए, सूरतुल मुनाफ़िकीन उतर आई, सूरत मुनाफ़िकीन है ना, वो भी उतर आई, साफ-साफ बता दिया गया, लेकिन फिर भी जंग नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उनके साथ कोई कि जंग करें और ताकि उनको मज़ा चखाया जाए। क्यों?
क्योंकि मुसलमानी का दावा करते थे ऊपर से। तो जब कोई मुसलमान अपने आप को कह रहा हो और उसको कत्ल कर दिया जाए या उसको सजा दी जाए, तो जो दुश्मन है वो क्या कहेंगे, वो देखो ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अब्दुल्ला बिन अबई के बारे में, जो कि मुनाफिकीन का सरदार था। तो उसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इजाजत दे, मैं इसे कत्ल कर दूं, इसकी गर्दन उड़ा दूं, इस मुनाफिक की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाता है। तो ऐसे लोगों को फिर किस कैटेगरी में लाते हैं हम, जो आज के जमाने में मतलब निकाल लें और फिर उसको कत्ल करवा दें। हम्म कई लोग करते हैं ना, बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, कोई वजीर है, कोई कुछ जी, है, जी, कोई हाँ मशीर जी। है, तो वो क्या करते हैं, किसी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को हुक्म दिया कि फलां को कत्ल कराओ, फलां का घर लूट लाओ। अब उसने घर लूटा, उस उनकी फरमाबरदारी की, घर लूट ले आया या कत्ल कर आया। अब उसका क्या करेंगे वो, उसको भी करेंगे, ठिकाने लगा देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करने के, तो उसको क्या कहते हैं, गुंडागर्दी है ना, गुंडे हैं जी जी। तो अस्तगफिरुल्लाह, रसूल जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, या बाकी अंबिया थे, उनको अल्लाह ने खैर खाही का जज्बा देकर भेजा। खैर खाही ही इंसानों की करनी है, क्योंकि यूं ही हम उनके लिए तड़प रखेंगे, तब ही हम उनको नसीहत कर सकते हैं, तब ही उनकी बातों से हमें राज बरत सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, खैर खाही रखनी है, इंसानों से खैर खाही रखनी। हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था, वो हुस्न अखलाक की बुक में, खैर खाही का पढ़ा था ना, याद हो अगर किसी को तो। जी बाजी, हाँ जी, खैर ख्वाहिश। दूसरों की खैर खाही करनी है, तो ये आयत साथ उसके नोट कर ले। ठीक है, अच्छा, ये आयत उसके साथ जाती है। इस आयत के ऊपर ही अगर मैं टाइम लगाऊं तो मैं घंटे लगा दूं, लेकिन नहीं लगाना ना, इतना आपको समझ आ गई है ना, हमने क्या जी करना है। बाजी, हाँ जी, हमें जी तो बाजी, आपका अपना देखना है ना, जी, खुद हम अपने ऊपर कैसा कुरान लाएंगे, इस तरह लाना है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं हम। जिसको समझ ना आई हो बाद में पूछ ले। हमने अपने आप को देखना है इस आयत के जुमरे में रख के, सामने इस आयत को अपने आप को परखना है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, और नहीं हमने, यानी कि और हमने जो रसूल भी भेजा, या नहीं हमने कोई रसूल भेजा मगर, तो इस तरह भी तर्जुमा कर सकते हैं जा, और हमने जो रसूल भी भेजा भी, अब जो है इसके एम्फेसाइज है, इसके ऊपर जोर डालने के लिए है कि जरूर ऐसी बात हुई है। सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए, यानी कि अल्लाह का जो हुक्म वो सुनाता है उसकी बात मान ली जाए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं और वलाउ अगर, बेशक वो उस वक्त यानी जब वो ये काम करते, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, जब उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया था। क्या जुल्म था? कि उन्होंने मामला अपना किधर लेके गए थे, मुनाफिक जो था, ये मैं बताऊं एक बात के, एक मुनाफिक और एक यहूदी के दरमियान में झगड़ा हो गया। ठीक है, मुनाफिक जो था मुसलमान था ना, मुसलमान था, अपने आप को मुसलमान कहलाता था, क्योंकि सारे मुनाफिक जो है मुसलमान ही तो थे, कहा कहलाते हैं अपने आप को। जी, क्योंकि मुनाफिक भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो अंदर से दिल से माना ही ना हो के इस्लाम को जनी माना ना हो, ऊपर से दुनियावी फायदे के लिए वो ऊपर से कलमा पड़ा हुआ हो, ऊपर ऊपर से जुबान से। लेकिन एक जो अकीदे से वो मुसलमान हुए थे, पक्के सच्चे मुसलमान हुए थे, लेकिन बाद में फिर गए दिल उनके, बाद में मुनाफिकत आ गई किसी दुनियावी फायदे की वजह से, जाके दीन में यानी कि कोई भी जरा की मुसीबत आई तो मैंने नहीं करना,
अच्छे दिन आए तो मैं करता हूँ, जब भी कोई जंग आई तो मैंने नहीं निकलना। तो यही हो रही है ना, जंगों की बात ही ऊपर हो रही थी जी, जी, कि वो नहीं निकले और उन्होंने क्या किया। जी, और फिर आगे ये जो है कि मामला एक यहूदी और एक मुनाफिक का था, और जो यहूदी था वो हक पर था, और जो मुनाफिक था वो हक पर नहीं था। वो गलत हथिया रहा था जो भी उनकी जमीन थी, या जो भी माल था। तो यहूदी कहता था कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला लेकर जाना है। एक रवायत में एक जगह पे ये भी आता है उनके कि वो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने फैसला लेकर गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला ऐसे ही किया कि यहूदी के हक में, क्योंकि वो यहूदी हक पर था, इंसाफ का फैसला। फिर वो उसने नहीं मानी, मुसलमान जो था मुनाफिक, उसने नहीं बात मानी, क्योंकि वो अपने हक में फैसला करवाना चाहता था। फिर वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के ने वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला हक पर किया, यानी कि यहूदी के हक में फैसला हुआ। फिर वो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो यहूदी ने फौरन बता दिया कि आप से के आने से, आप की तरफ आने से पहले ये हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा चुका है, और उन्होंने मेरे हक में फैसला किया है। अब जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ठहरो, इधर ठहरो, और अंदर गए और तलवार लेके आए और उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया, और फरमाया कि जो अल्लाह के रसूल का फैसला नहीं मानते, हाँ, उमर उनका फैसला ऐसे किया करता है। एक ये भी रिवायत आती है। लेकिन जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे वो एक हुआ था ऐसा भी मामला कि वो गए थे, मुसलमान मुनाफिक जो था वो कहता था कि यहूदी आलम फलां के पास जाना है, उससे फैसला करवाना है, क्योंकि वो यहूद जो थे बेचते थे ना, यहूदी आलम बेचते थे, वो लेते रिश्वत लेते और फैसले कर देते लोगों के। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूद भी आते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच पे फैसला करते, हक पे फैसला करते। तो वो यहूदी जो था उसके पास गए, आलिम के पास, और उसने फैसला यानी कर दिया मुसलमान के हक में, कुछ इस तरह की थी बात। तो फिर वो यहूद जो था वो सैटिस्फाई नहीं था, वो उसने फैसला इधर-उधर लेने के। तो ये जब जब भी होता रहा है, मुसलमान जो हैं, सच्चे पक्के मुसलमान तो मान लेते हैं, वो तो किसी के पास फैसला और के पास लेकर ही नहीं जाएँगे ना। क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने फैसला ले जाने की क्या ज़रूरत थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे तो। ऐसा ही है ना? जी, जब अल्लाह के नबी हयात थे, तो फिर जी, दूसरे फैसला क्यों करें? जी, तो इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सर कलम किया था। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हम भी क्या करते होते हैं, हम इससे अपना कैसे लें? बताएँ मुझे कोई, कैसे लेते हैं हम इससे अपना काम? बाजी जब पता कभी हो के हमने भी जैसे ऐसा किसी किया, हमारे मुसलमानों ने भी? अब मुसलमान करते हैं बाजी, हाँ जी, जो पता होता है कि इसने सही फैसला करना है तो उसके पास नहीं जाएँगे, दूसरे के पास जाएँगे। दूसरे जजों के पास, दूसरे अगर अगर वकीलों वो के गलत पास तो होगा तो वो जाएँगे ना दूसरे के फैसला पास के। जाएगा ना, अगर वो हक पे नहीं होगा तो, हाँ जी, हुँ, उसको पता जो होगा, जज भी आज तो वो जज भी नहीं रहे, कुछ जो भी नहीं जज है भी जी, बाजी। हक पर फैसला करता था, उसके उसकी तो अदालत में ही नहीं जाते। वो कहते हैं कि जी, आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है बाजी। तो जो रिश्वत लेके जिधर का हो वो फैसला का तो कत्ल आप आज करके लोग अपने दंडनाते फिरते हाँ हैं, जी और बाजी, उनको कोई ये पूछने बात तो आप सही सीख वाला है। ही नहीं। रहे हैं कि जज फैसले जो करते हैं वो पता चल ही रहा है क्या कर रहे हैं। हुँ, तो ये ये तो हिसाब है। तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज भी थे। हाँ जी,
जी, जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के फैसले भी करते थे। फैसले भी करते थे। हाँ जी। तो वो फैसला अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार की तरफ आते, अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत करते, जन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो भी रसूल भेजा सिर्फ इसलिए भेजा, यानी कि उनके आने की, रसूलों के आने की वजह क्या है, क्या थी, कि उनकी अताअत अल्लाह की जाए, अल्लाह के कौम हुक्म की मान इताअत की जाए जाए। उनकी, इनका जो बात वो हाँ, बता रहे हैं उनकी बात मान जाए। मान तो जाए। रसूल क्या बताते थे, सबसे पहले तो अल्लाह अल्लाह का हुक्म। वाहदुल्ला शरीक की वाहदानियत बताते, और फिर फिर आपने अल्लाह के हुक्म को यानी मानने के लिए आपने कहते कि हमारी अतात करो अल्लाह के हुक्म में, यानी कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया है मान लो इस बात को, और फर्माबरदारी में आ जाओ। लेकिन जो नहीं मानते थे वो फिर क्या करते थे, यही कुछ करते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फिर हुआ। तो अल्लाह ताला जी, फरमाते हैं, अगर वो आ जाते, अपनी अकड़ छोड़ते, अपना दुनियावी नुकसान छोड़ देते, और जा फिर कर भी लिया था ऐसा फैसला, तो फिर भी आ जाते और सॉरी कर लेते हैं ना, सॉरी कर लेते क्या मतलब जी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांग लेते, माफ़ी माँग लेते हैं। है ना? और फिर अल्लाह से भी माफ़ी माँग लेते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके तौबा उनके लिए, यानी कि उनके लिए दुआए उनके मगफ़िरत हक के करते कि अल्लाह इन्हें जी, माफ़ कर दे, और के हक जी। में दुआ अल्लाह और करते हैं। को अल्लाह भी का माफ़ करने वाला फिर पाते, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाते, जब वो खुद भी तौबा करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाइश करते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआए मगफ़िरत करें, कि अल्लाह उन्हें बख्श दे, ये जो खता हुई है उनसे। तो ये बात हो रही है, अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चनाचे फला व रब्बिका, यहाँ पे बस आपके रब की कसम, नहीं युमिनूना ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, कि वो तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के, जहां तक के वो हाकिम ना मान लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक, यानी अब ईमान की शर्त जहाँ पे क्या बताई जा रही है, अगर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम नहीं मानते अपने फैसले फैसले करवाने में, तो तब तक वो मोमिन नहीं हो सकते। ईमान की शर्त है ये एक, कि सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ही नहीं लाना, उनकी अतात हर हाल में करनी है, फैसला करें तो उसको भी कबूल करना है। अगर कोई ऐसे तनाज़ात के दरमियान हो जाएँ, तो वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आके बताना है, और उनका फैसला फिर मानना भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए फैसले के मुतल्लक वो अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएं, यानी मुसलमानों को एक कसौटी दे दी गई, ये अब मुसलमानों को क्या किया जा रहा है, एक हुक्म सुनाया जा रहा है, अल्लाह ताला अपना हुक्म सुना रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि जो भी तुम्हारा फैसले हों क्या करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना है लेके, और जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दें फिर उसको खुले दिल से मान भी लेना है, अमल भी उस पर करना है, खुशी से तस्लीम करने पे, ठीक है? तो ये अल्लाह ताला का हुक्म मोमिनों के लिए उस वक़्त। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर आ जाती है, कोई हदीस मौजूद है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ बता रही है हमारे तनाज़ात के बारे में, तो हमें क्या करना है? उस हदीस को, उस सुन्नत को लेते हुए खुशी से फिर मान लेना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में ये हुक्म दिया है, ये बात बताई है, ऐसा किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हमने भी कर लेना है, ये है मानना, खुले दिल से फिर मान लेना, तस्लीम कर लेना बात को फिर। आज भी है ये, ठीक है? उस वक़्त जी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मौजूद है, जी, आपका अमल मौजूद है, यानी कि सुन्नत और हदीस की शक्ल में।
اور قرآن کی جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو آیات موجود ہے ہمارے ریفرنس کے لیے، ہماری دلیل کے لیے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے، یعنی کہ ہم نے تو ان پر اتنی سختی کی نہیں ہے، اگر ہم سختی کر دیتے ان پر، یہ حکم سنا دیتے انہیں. لکھنا کیا ہوتا ہے؟ فرض کر دینا. ٹھیک ہے، لکھ دینا کیا؟ فرض کر دینا. اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی کہ جتنا سنگین جرم انہوں نے کیا، اگر اللہ تعالیٰ انہیں کہہ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، جا اپنے گھروں سے نکل جاؤ اب، تو ان میں سے تھوڑے ہی یہ کام کرتے، یعنی مانتے نا. جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے، ان کو اگر اللہ تعالیٰ ایسا لکھ دیتے، فرض ان پر کر دیتے، تو انہوں نے پھر ماننا نہیں تھا، نافرمانی زیادہ کر دینی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ آخری قوم تھی، یعنی کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، جنہوں نے مثالیں چھوڑنی تھی پیچھے آنے والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر درگزر کیا ان سے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی کرتے ہوئے نہیں بتایا، اسی لیے تو فرمایا اعراض برتو ان سے اور نصیحت کرتے رہو انہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور یقیناً اگر وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جو بھی بات بتائی جائے، نصیحت کی جائے، اللہ کی طرف سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، چاہے حدیث ہو، سنت ہو، جا اللہ کا حکم ہو، تو کیا ہو؟ تو ان کے لیے بہت بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا، تثبیتا ثباتا سے ہے، ثابت قدمی رکھنا کا باعث ہوتا. کیا؟ اگر وہ مان لیتے بات کو، تو عمل اس کے مطابق کر دیتے. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم بھی بہت دلیل لینا آتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایسے ہیں، نہیں میرا تو مطلب ہی یہی نہیں ہے، اور یعنی کہ کیونکہ ہم نے ماننا نہیں ہوتا بات کو، اس لیے. تو اللہ جی کیوں فرما رہے ہیں اگر ایسی باتوں کا حکم ہو جاتا تو کیا آج ہم مانتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے نافرمانی کر دیتے، کم ہی، تھوڑے ہی ہوتے جو مانتے. تو یہ تو ہمارے لیے بھی رحم ہے نا اللہ کی طرف جی سے، جی بات. چھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی نہیں کی ہمارے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور کچھ آیات قرآن کی، وہ جو ان کا فیصلہ ہوتا، جو ان کی رائے ہوتی، جو ان کے دل میں ہوتی بات، جو ان کی خواہش ہوتی، اس کے مطابق آئی تھی کچھ آیات. ٹھیک ہے، تو یہ پھر ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے لیے بہت ہمدردی رکھتے تھے، محبت کرنے والے تھے، ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے، ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ان کے لیے، یعنی کہ وہ اپنے لیے نیک اعمال کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھیں، سبقت لے جانے والے ہوں. ان کو بہت ایمفیسائز کرتے، ان کو بہت یعنی پیار سے سمجھاتے اور نصیحتیں کرتے رہتے، دعائیں بتاتے رہتے. تو یہ خیر خواہی ہونی چاہیے دوسرے انسانوں کے لیے، تاکہ وہ بھی نیک بن جائیں، تاکہ وہ بھی غلط چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر ہم سختی ان پر کرتے تو ہم ایسا بھی کر سکتے تھے. اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ ایسا لکھ دیتے، ایسی بات کر دیتے ہمارے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آگے ہے آیت نمبر 68 67. اور وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ، اور تب البتہ ہم دیتے ان کو مِن لَدُنَّا اجرا عظیما، البتہ
अजर बहुत बड़ा, यानी बहुत अजर मिलता उनको अगर वो मान लेते उस बात को जो भी नसीहत की जाती थी, और साबित कदम रहते दीन में। क्यों साबित कदमी नहीं दिखाई ना, उन्होंने दीन में तो आ गए, लेकिन दीन पर साबित कदम नहीं रहे, दीन पर जमे नहीं रहे, दीन से अंदर से कुछ बाहर से कुछ हो गया। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए, क्योंकि मुनाफिकत जो है वो हम में भी आ सकती है, और कई दफा आ भी जाती है और हमें पता भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइज़ल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा, और अल्लाह बहुत बड़ा अजर देते उन्हें। वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और अलबत्ता और ला अलबत्ता हदैना हदै हदाया जो होती है हदायत, ना हम वो, और अलबत्ता हम उन्हें देते हदायत देते सिरातन रास्ता की, मुस्तकीमा सीधा, सीधे रास्ते की अलबत्ता हम उन्हें हिदायत देते, यानी अगर वो मान जाते, वो अतात कर लेते उस हर बात की, तो उन्हें ये मिलता, फिर उनका इनाम ये होता। ऐसे नहीं कि जे किसी को बताते हुए कोई काम कर गुजरा और उसको बताते हुए कि अगर ये काश ने ऐसा ना करता ना, तो मैंने इसलिए के लिए ये बना के रखा था, था मैंने, इसको ये मिल जाता है ना। एक हमदर्दी की बात अल्लाह ताला ना करते, तो इन्हें तो जे उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहस्सुन उलाइका रफीका। ये भी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं, अब आ गई वो जो खालिस मुसलमान हैं, वो ऐसे लोगों के साथ होंगे जिन्हें उन पर अल्लाह ताला का इनाम और कराम क्या होगा, कि ऐसे लोगों का साथ अल्लाह देगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। और अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, हम पढ़ते हैं ना, जी, आमीन, जी, आमीन। वहां पे। तो ये हैं इनाम याफ्ता लोग, ठीक ठीक, है, जो उधर मांग रहे हैं, ये इनाम याफ्ता लोग हैं जिनका हमें साथ चाहिए, अल्लाह हमें दे साथ। न? आमीन। अब सिद्दीकों में कौन है, हजरत सिद्दीक अकबर भी है ना, जी, सिद्दीकिन सच्चाई वो सदाकत करने वाले, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सच्चा माना था, सदाकत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज के वाक्य में। और शुहदा, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खुद पहाड़ पर खड़े थे, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु थे साथ में, और उहद का पहाड़ जो है वो कांपने लगा, हिलने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थपकी दी है, मुझे अब पक्का याद नहीं है कि उससे, और कहा कि ए उहद संभल जा, जब थम जा, तुझ पर अल्लाह का नबी और और सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, और एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हैं। तो ये खुशखबरी भी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि वो शहीद होंगे, यानी कि वो शुहदा का रुतबा पाएंगे। वो सालिहीन और नेक लोगों का भी अल्लाह ताला साथ फरमाते हैं, उनके साथ देते वह सुना उलाइका रफीका, और अच्छे ये लोग हैं, इन लोगों की रफाकत बहुत ही खूबसूरत है। ज़ालिकल फद्लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तरफ से फजल है। वकफा बिल्लाहि अलीमा, और काफी है अल्लाह जानने वाला, इल्म वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फंफिरू सुबातिन अविंफिरू जमीआ। ए लोगो, ए मान वालो, जाया लोगो जो ईमान लाए हो, पकड़ो। खुजू का क्या मतलब है, खुद पकड़ना, खुजू पकड़ो, यानी पकड़े रखो तुम सब, हिजरा कुम अपने बचाव का सामान, क्या हिजरा बचाओ का सामान, कुम तुम्हारा, फम फिरू पस निकलो, इनफ्रा क्या है, इनफिरू फम फिरू पस निकलो, सुबातिन ग्रो ग्रो दर ग्रो, या ग्रो ग्रो, अवी अविम फिरू या निकलो, जमीयन कट्ठे।
यानी एक एक ग्रोह तुम में से एक एक दो दो अलहदा अलहदा निकले या इकट्ठे निकले, फिर भी क्या करो, अपने बचाव का नहीं नीचे रखना। क्यों? क्योंकि पीछे जंग की बात हो रही थी। ये जंग के मकाम के लिए कि जिस वक्त खतरा हो, जिस वक्त जंग का खतरा हो या दुश्मन के हमला करने का डर हो, तो क्या करेंगे फिर? अपना हिफाजत का सामान साथ रखेंगे। साथ रख उसको जैसे भी निकलते हैं ग्रुप की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में, ग्रुपों की शक्ल में, या सब के सब इकट्ठे फौज की शक्ल में निकलते हैं, अपने हथियार साथ रखने हैं। व इन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन फ़इन असाबतकुम मुसीबतुन क़ाल क़द अनअम अल्लाहु अलय्य इज़ लम क़द अनअम अल्लाहु अलय्य इज़ लम अकुम मअहुम शहीदा। और बेशक तुम में से अलबत्ता ज़रूर तो तुम में से जो ज़रूर देर करता है, सॉरी, और अलबत्ता बेशक तुम में से कोई ऐसा भी है जो ज़रूर देर करता। क्यों देर करते थे? जिसका दिल ना चाह रहा और निकलने का, क्या करता है? सब निकल जी के जल्दी जल्दी चल जाए। जिन्होंने तो खुशी खुशी निकलना है ना, जो तो जी इंतजार कर रहे थे, जो दुआएं मांग रहे थे जी कि हमें अल्लाह शहादत दे, हमें मौका दे जंग में निकलने का, क्योंकि उन्हें पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना क्या फजीलत है उसकी, क्या मिलने वाला है शहीद होने के बदले में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई ऐसे भी हैं कि जो मुनाफिक थे, वो टाल मटोल करते थे, लग रहा होता कि ये भी निकलेंगे, लेकिन देर लगाई, आहिस्ता 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 निकल जाएंगे, कोई नहीं, निकलने दो, हम भी निकल जाएंगे। तो फिर क्या हुआ? नहीं निकले, काफिला आगे बढ़ गया। अब कोई देर लगाता लगाता रहे तो काफिले ने उनके साथ इंतजार तो नहीं ना उनका करते रहना, उन्होंने तो चले जाना है। जी जी निकल जी गए, नहीं निकले फिर, क्योंकि देर लगा दी, अब बैठ गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर अगर तुम्हें मुसीबत पहुंचे, कोई मुसीबत आ जाए, असाबत मुसीबत से है, मुसीबत तुम्हें पहुंचे, असाबत पहुंचे, असाबा क्या है? पहुंचना। असाबत, अब ता जज़म वाली कब आती है? आपका इम्तिहान ले लिया जाए, ता जज़म वाली कब आती है? कुम फिर को मोनस छोड़ के दें लिए, आप, मोनस के लिए। मोहम्मद मुअन्नस के लिए है ना, क्योंकि जी जो लफ्ज मुअन्नस आगे जी मुसीबतुन है ना, तो जी ये क्या है? जी ये तनवीन बता रही है और छोटी जी ता बता रही है कि ये मुअन्नस है, मोनस है। तो मोहम्मद इसलिए ये भी असाबत आया है। तो पहुंचे कोई मुसीबत किन्हें? मुसलमानों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को। काला कहता है वो जो देर लगाने वाला था, जो देर लगा रहा था ना कि ना ही मुझे निकलना पड़े, टाल मटोल कर रहा था, वो क्या कहता है? क्योंकि निकला नहीं ना आखिर में, रह गया, जी ढेर हो गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो फिर कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा इनाम किया है कि मैं मुझे इस मुसीबत से बचा लिया, शुक्र है मैं उनके साथ नहीं था। हम क्या करते हैं, अगर किसी काफिले के साथ निकलना हो या कहीं जाना हो, तो अल्लाह ना करे कि उनका एक्सीडेंट हो गया या वो कुछ उनके ऊपर मुसीबत आ गई है ना, जी तो जो नहीं निकले थे, निकलते शुक्र निकलते बच गए, शुक्र वो है कि क्या हम उनके कहते हैं? साथ नहीं थे। हाँ जी, कहते शुक्र है हम शुक्र उनके है साथ हम उनके नहीं नहीं थे साथ नहीं थे। उनके थे, साथ, हाँ है ना, हमें जी अल्लाह ने बचा हाँ लिया, बस हमें हम अल्लाह उनके ने साथ। बचा लिया, तो ये भी ऐसा ही कहते थे, जी शुक्र है कि मैं नहीं था उनके साथ, जी मुझे तो बड़ा अल्लाह ने इनाम कर दिया कि मैं बच गया, वरना मेरे ऊपर भी यही मुसीबत आती। और अगर तुम्हें अल्लाह का फजल पहुंचे, यानी कि अगर वो जंग जीत के आ जाते हैं, वहां से बहुत सारा मालूम मता लाते हैं जंग से, तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं कि ला यकूलन्ना का अल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुन्तु माहुम फाफूज फौजन अजीमा। फिर उन्हें पछतावा होता है, फिर वो बहुत पछताते हैं, और क्या कहते हैं, कहने हैं ना कि उंगलियां काटना पछतावे में, जी उंगलियां काटते हैं फिर वो अपनी, क्या कहते हैं? काश, यानी मैं भी निकला होता,
काश वो हमदर्दी मोहब्बत मेरे और इनके दरमियान होती तो आज मुझे भी बड़ा फायदा होता। आज मुझे भी इस माल में से हिस्सा मिल जाता। हिस्सा किनको मिलता था? जो जिहाद के लिए जो सिपाही जहाज के लिए निकलते थे, जाते जो थे जाते थे, जाते उन्हीं में थे तकसीम कर दिया जाता था वो माल। जो पीछे रह जाते थे उनमें उन्हें नहीं मिलता था। तो अब वो पछतावा उसको आता है ना। फिर ऐसा होता है ना कि किसी को मुनाफा पहुंचे तो वो किसी की जमीन ही है, कुछ है, बेचा, पहले तो लिया नहीं, हिस्सेदार कोई भाई नहीं बना, जब बहन नहीं बनी, लेने में पैसे नहीं लगाए, और फिर जब वो उसको खूब उसकी हुई कीमत बढ़ी, उनको बेच दिया, तो वो फिर क्या कहता, काश उस वक्त मैं भी मान जाता तो मुझे भी आज इतना ही फायदा होता। जी होता जी ना जी जी लोग, है ना, जी ये होता है है। हम लोग। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब को हदायत अता फरमाए आमीन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात, अल्लाह की बताई हुई बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। किसी की कोई बात हो तो ये देखें कि आप रूट वर्ड इसको ढूंढा करें, मुसीबत में क्या है, ऐसे ही देखें क्या है। ठीक है, रूट वर्ड हमने काफी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया हुआ हाँ है जी ना आपको, हाँ जी प्लग जी एंड प्ले में भी रूट वर्ड कैसे निकालना है। हम्म? जी 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 कि आगे पीछे का परे कर दें जी और फिर देखें कि क्या है, क्या जो बन रहा है। हाँ जो जी गुम हुम वो कमाल के शे हरूफ हैं वो सारी निकाल दें, ज़मीरें जी परे जी कर दें और फिर निकाला करें। पहले का भी परे कर दिया करें जब वो आया होता, जैसे ला ला युबत्ती अन हुआ तो ला जो है वो भी निकाल देंगे आप, यू भी ला निकाल देंगे, बाती बाता बात हमजा आई रह जाएगा, बता। ठीक है, बता जी देर लगाना। लायु तो बत्तियां इस हाँ तरह जी हम ढूंढते जी हैं। ठीक है, असाबा में, असाबा में क्या है, असाबा ही है, कुम असा निकाल दे तो असाबा यही है। असाबा हाँ जी ठीक है, इस तरह आप इनकी गौर फिक्र भी किया करें। अल्लाह ताला असाबत हमें होगा बाजी, तौफीक असाबत नहीं होगा। असा, जहाँ पे असाबत मुसीबा है ना, होता मुसीबा, हाँ जी मुसीबा सैयबा, बाजी मुसी सैयबान क्या है, बाजी असाबत मुझसे पहुंचे है ना। हाँ जी तुम्हें मुसीबत, पहुंचे, हाँ पहुंचना, तुम तुम्हें ये पहुंचे। हाँ जी पहुंचना होता है, हाँ जी इसका पहुंचना असाबत होता है। ठीक जी है, ये हाँ है असल में जिसका रूट वर्ड इसम ये है, कोई जी मुसीबत काम का नाम है ना, जी काम के नाम को मस्तर भी कहते हैं, जी मुसीबत। जी तो ये मुसीबतुन यही होगा, फिर आगे जाके फेल में भी आएगा ना, जी फेल करना है ना, हाँ मुसीबत को जी होती है, आती है आती वो है। हाँ जी फेल है, फेल भी पता चलता है। लेकिन जहां पे क्या है, जब तनवीन आती है तो क्या होता है, वो भी आपने देखना है, हाँ उनको ही जी याद करें और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तनवीन आती है, तनवीन तो किसके ऊपर आती एक है, को ज़ाहिर अल और करती है। तनवीन, अल और तनवीन किस पर आती है, तो जी वो हम सब पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह जी ताला। क्या फेल पर तनवीन आती है कि नहीं, क्या इसम पर तनवीन आती है, किस पर तनवीन आती है, जी आप याद रखा करें इन बातों को इंशाल्लाह। अच्छा जी इंशाल्लाह। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरकातहू।